Hello, welcome to my video. Today we are doing the stats, and after stats we shall do probability. And if you do these two, so these are very easy chapters, and if you finish these two chapters you will get 10 to 11 marks, and it will be in your hand. In stats it is 6 marks, I believe 6 or 5 marks, so that will be in your hand. So I am giving all types of questions from stats, so that you can know whatever the question will come, you will be able to solve it, and there is no doubt about it. But only addition, subtraction, multiplication should be correct. That you should be very careful. Okay, let's start. Okay, this is the second part. Let's start. So in this question, what is saying? Compute the arithmetic mean by assumed mean method for the following data. Yesterday in last video I solved the assumed method, but there what only 5 class intervals like this 1, 2, 3, 4, 5 only class intervals there. So we have chosen the middle one, because upper two class marks we class intervals you omitted, then down one, the middle one we have taken as a assumed xi. Class mark xi we had taken. But if it is even numbers, then what to do? You see, in even number, any one, either 1, 2, 3, either third you can choose, yeah, fourth you can choose it. Okay, so now let's do this sum. Here how many class intervals are there? 6 class intervals are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6 class intervals are there. So which one we have to take? We can take, we should take out xi, then after that we shall do it. Okay, now in this what is saying 0 to 10, the marks obtained 0 to 10 marks, मतलब 7 marks भी हुआ, 8 marks, 9 marks, 5 marks, 3 marks. That 0 to 10 marks, how many children got? 14 children got. And 10 to 20, how many children got? 11, 12, 13, like that. 10 to 19, how many children got? 8 children. Like that. 20 to 30 marks, how many children? 15 children. And 30 to 40, 21 children. 40 to 50, how many children they got? 9 children they got. 40 to 50 marks. That means 40 marks. Yeah, some got 41, some got 42, like that. Within 50 they got. After that 50 to 60, how many? 8 children. So this is the thing he is given. Find the mean, मतलब middle, mean, average जो कहा, average निकालना है. So now what we have to do? We have to take the mid value. Mid value is known as what? Class interval. Okay, mid value is known as what? Class interval. Now let's see how to take the mid value. You know that this 0 is the lower limit, 0 is the lower limit, that we know, and 10 is the upper limit, isn't it? Upper limit in first class interval, second class interval 10 is the lower limit and 20 is the upper limit. Like this it is there. So from this only we can find xi. How to find out? You add up both and take the average, मतलब मिडिल नंबर ही लेना है, बीच का नंबर ही लेना है. दैट मीन्स 0 to 10 के बीच में कौन है? 5 है, तो ये 5 ले लिया. xi क्या लिया? 5 लिया. फिर 10 to 20, what is the gap? 10 is gap, then we shall add it up. 10, 5 plus 10 is 15. ऐसा भी कर सकते हो. 10 plus 20 divide by 2. This will take lot of time. You add, then you divide, rather than just you add the difference. What is the difference between 20 and 10? 20 minus 10 is 10. 10 plus 5 is 15. 15 plus 10 is 25. 25 plus 10 is 35. 35 plus 10 is 45. 45 plus 10 is 55. Okay. Now this is what di we are finding out. Xi minus a is known as what? That equals to di. Di how to find out? Xi we have to choose. You see how many numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6 class marks are there. Class marks मतलब mid value या xi. तो इनका बीच वाला कौन सा है? 25 हो सकता है, 35 हो सकता है. हम ले लेंगे 35. 35 is our a. ठीक है,
35 को a ले लिए. फिर अब क्या है xi minus a. That means I told you in the last video that first number should come negative, then comes 0, then पॉजिटिव नंबर विल स्टार्ट. सो नेगेटिव आने के कई बच्चे क्या करते हैं 35 माइनस 5 दे दो, देन पॉजिटिव 30 विल कम. नो, 5 माइनस 35. सो 5 minus 35, that will become minus 30. Understand? So minus 30. This is D is minus 30. After that this one will become minus 20, है ना. Then xi minus a 25, then xi minus a, xi is 25, 25 minus 35, that equals to minus 10, and 35 minus 35 is 0. Then 45 minus 35, now positive will come, then this will become positive 10, then this one will become positive 20. Okay, now fi into di. See, this is fi and this is our di. Multiply karo, 14 3s are 42 and this 0. Okay, minus is there, plus into minus is minus. 20 into 8, 160. Then plus into minus is minus. 10 into, this is like this. Okay, let me do the column. 10 into 5 is, 10 into 5 क्या है, sorry, 10 into 15, this is 15. 10 into 15 minus 150. Then 0 into 21 is 0. 10 into 9 is 90. 20 into 8 is 160. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव सारे को ऐड करेंगे. 915 1 250 आ गया, है ना. 250 आ गया. अभी इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो गया 0 0 0 0 0 एंड 6 2 8 8 5 8 5 13 1 4 1 5 1 6 1 7 730. Okay, 730 minus this one 0 915 1 915 1 2. So now 0 13 minus 5 is 8. Here 7 से 1 चला गया, 6 से 4. तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ fi di इक्वल्स टू माइनस 480 बिकॉज दिस इज ग्रेटर. ठीक है. अब हम चलेंगे समीशन ऑफ fi, है ना. समीशन ऑफ fi करेंगे तो समीशन ऑफ fi इज हाउ मच. समीशन ऑफ fi निकालो तो ये हो जाएगा 12 17 18 18 24 5 24 6 30 30 5 35 3 3 1 4 5 6 7 75. Summation of fi equals to 75. Okay, now this has come, right. Now let's do the sum. So what is saying, therefore mean equals to, what is our formula, mean is what, x bar, है ना, that equals to a plus summation of fi di upon summation of fi, right. Now let's do next question. So mean का formula लिख देंगे a plus summation of fi di upon summation of fi. So mean equals to a हम क्या लिए थे 35 लिए थे, प्लस ये क्या आ गया माइनस 480 आया था, है ना, माइनस 480 अपॉन fi क्या है 75. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 480 माइनस 75, 5 15s are 5 9s are 5 6 are. Okay, then 3 5s are 3 3s are 3 2s are. So this one will become that equals to 35 plus 5 6 are 30.4. That, oh, sorry, this is minus. Okay, this is minus माइनस हो गया. अभी 35 प्लस, इसको अच्छी तरह से लिख दें, माइनस को ढंग से लिख दें. तो 35 प्लस हो गया, ये हो गया माइनस, हाउ मच हैज कम 6.4. नाउ 35 प्लस इंटू माइनस माइनस 6.4, दैट इक्वल्स टू 0.6. दिस इज आंसर 28.6.
6 is the answer. Okay, got it? Now let's go to the next question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये एनसीईआरटी का 14.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है. ठीक है, ये है, क्या कहा है ये कि उसमें गार्डन में कुछ मैंगोस तोड़े, उसको पैक किए कई बैग बॉक्सेस में, तो वो बॉक्सेस में रखे क्या है? 52 मैंगोस कितने बॉक्सेस में रखे? 15 बॉक्सेस में रखे. 53 से 55 कितने बॉक्सेस में रखे? 110 बॉक्सेस रखे. फिर 56 से 58 तक कितने बॉक्स में? 135 बॉक्स में. फिर 59 से 61 कितने बॉक्स में? 115 हो गया. 62 64 रखे 25 बॉक्सेस में. तो अभी हम इसका मीन निकालना है. ये मैं क्यों दिया है? देखो कल तो सारे क्या है, ये इसको कहते हैं, देखो ये क्लास इंटरवल को ध्यान, पहले क्वेश्चन देते ही फर्स्ट यू हैव टू सी व्हाट इज द क्लास इंटरवल, वेदर इट इज कंटिन्यूअस और discontinuous, that you must see. Here you see 52, the upper limit of this will become the lower limit of second class interval. Second class interval upper limit should become the lower limit of the थर्ड क्लास इंटरवल. ऐसा उसका कंटिन्यूअस होना चाहिए. कंटिन्यूअस नहीं हो तो आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. सो लेट मी राइट डाउन दिस so that you can, while doing you can remember this, but this is not needed to write in the exam. After this just you will start this. You see I made the table like this, you will make the table. Okay, so but here I am writing for you. What you will write? First you will write distribution. पहले देखोगे distribution is discontinuous. Here लिख लो. Here discontinuous, distribution is discontinuous. So what we have to convert it into continuous distribution. ये तो हो गया, लेकिन कैसा करेंगे? हाउ टू डू इट? बाय यूजिंग एडजस्टमेंट. by using adjustment. What is adjustment factor of? क्या है एडजस्टमेंट? देखो ये दोनों का डिफरेंस क्या है? 53 और 52 का डिफरेंस क्या है? 53 का 52 का डिफरेंस निकालोगे तो 53 माइनस 52 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 0.5. दैट इज द डिफरेंस. सो समझ में आ गया? दैट इज द डिफरेंस. अब ये 0.5 को क्या करोगे? लोअर मतलब कम है तो लोअर में से कम को माइनस करोगे, और भी कम आना चाहिए. 50 से 0.5 को माइनस करोगे. ये हो गया लोअर लिमिट से का. अपर लिमिट के साथ क्या करोगे? 52 अपर मतलब ज़्यादा, तो अपर लिमिट में फिर 0.5 ऐड करके ज़्यादा करोगे. लोअर करोगे ज़्यादा करोगे, माइनस करोगे ऐड करोगे, माइनस करोगे ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. ठीक है, अब चलो करेंगे कैसा? अब देखो अभी 52 50.5 है. 50 से 0.5 माइनस करो, वो हो जाएगा 49.5. 49.5 से यहाँ और कुछ ज़रूरत नहीं. यहाँ क्या करोगे? 52.5 कर, यहाँ 0.5 ऐड करना है. यहाँ फिर ये 52.5 यहाँ ले आओगे. 52.5 यहाँ सेकंड क्लास इंटरवल में आ जाएगा. फिर यहाँ क्या होगा? इसमें से 55 से 0.5 ऐड कर दोगे 55.5, और इसमें फिर इसको यहाँ ले आओगे. कंटिन्यूस हो जाएगा. 55.5 ये हो जाएगा 58.5 हो जाएगा, है ना? 58.5 हो जाएगा. फिर इसका हो जाएगा 58.5 ले लोगे, ये हो जाएगा 61.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 61.5 से ये हो जाएगा 64.5
हो गया। ठीक है, अब हो गया। अभी xi निकालो। xi कैसा निकालो? 50 और 52 के बीच में कौन आएगा? 51 है। ठीक है, या देखो ये सेम ही आएगा 49.5 और 52.5। ये 49 प्लस 50, 50 प्लस 52 ये सेम, 50 प्लस 52 सेम आ गया, है ना। सो इसीलिए ऐसे भी कर सकते हो ऐसे, लेकिन डेसिमल करने से थोड़ा झंझट होगा, तो आप क्या करोगे, इसका मिड वैल्यू ले लोगे, ये दोनों का 50 52 का मिड वैल्यू क्या? 51। फिर इसका गैप क्या है? दो गैप है ना, 53 और 55 प्लस 53, तो हाउ मच? 102 हाँ 54 हो गया। फिर ये हो जाएगा 54 हो गया, ये हो जाएगा 51, देन 54 हो गया, अभी 57 हो गया, और ये हो जाएगा 8 4 14 5 5 10 11 2 5 14 हाँ 14 हो गया। फिर इसका हो जाएगा 60, है ना, 60 हो जाएगा। 3 3 ऐड करते गए ना, 51 प्लस 3 इज़ 54, 54 प्लस 3 इज़ 57, 57 प्लस 3 इज़ 60, 67 प्लस 60 प्लस 3 इज़ 63 आ गया। फिर FI से आप कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, किसको? FI 15 और 15 1 सर 15 1, 15 5 सर 75, 76 हो गया। फिर इसको भी ऐसा करके सारे इसको मल्टीप्लाई करना, 765 कुछ आएगा। फिर नेक्स्ट वाला है 5140, 5140 देखो, 11 4 सर 44 4, 11 5 सर 55 55, 11 5 55 56 57 58 59, ये 59 हो गया। ठीक है, ऐसा करके सारे करके फिर सेम जैसा हमारा मीन इक्वल्स टू FI इंटू FI अपॉन FI कर लोगे, समीशन करके कर लोगे। ठीक है, अब तुम ये कर लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी NCERT का। ये मैं क्यों दे रही हूँ, देखो पॉइंट है, इसलिए बच्चे क्या सोचते हैं, अरे बाप रे पॉइंट बड़ी झमेला है, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा करके करेंगे। तो फिर हम इसको FI में ही करेंगे, वो ईजी। वो कुछ कहा है क्या, स्टूडेंट कलेक्ट्स द डाटा 30 सर्टेन सिटी एंड इज रिप्रेजेंट बिलो, हम इसको FI कर लेंगे। FI करने से वो ईजी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कहा नहीं, कहने से फिर वही मेथड है। तो अब इसको हम इसको ये करेंगे, मिटा देंगे। FI ठीक है, अब ये 0.04 इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, करने से क्या आएगा? 0.02 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 0.02 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 0.06 हो जाएगा, है ना। 4 हाँ 2 सर 4, है ना। ये हो गया 8 4 12 हाँ 6 हो गया। फिर यहाँ क्या करेंगे, 0.4 ऐड करते जाएंगे, ये हो गया 10 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 0.14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.18 हो जाएगा, है ना। 4 4 ऐड करें, 0.4 ऐड करने से 22 हो गया। अभी FI इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 सर 8, ठीक है, 0.42 सर 8। फिर ये हो जाएगा 0.90 हो गया, ये हो जाएगा 14 2 सर 28, 0.28, ये हो गया 18 4 सर 72 हो गया। फिर ये हो जाएगा 22, 0.44 हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 8 4 12 12 20 20 22 26 6 2 5 9 1 9 9 1 10 16 17 18 19 20 20 5 25 25 4 29 29। तो here point. So now this is FI summation of FI. Now summation of FI निकालो, 9 4 18 20 20 और 4 20 और 4 24, है ना। 9 9 18 19 20 24
28 29। ठीक है, अब चलेंगे इसका समीशन निकालने के। तो देन व्हाट, मीन इक्वल्स टू व्हाट, एक्स आई। अरे ओवर राइटिंग हो रहा है। xi that equal to summation of fi xi upon summation of fi। ठीक है, सो नाउ व्हाट, दिस इज व्हाट मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पूछा बच्चे, वो कर रहे थे, है ना। तो अभी सारे में क्वेश्चन लिखा नहीं, ठीक है। फिर अब मीन इक्वल्स टू हमारा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आया, 2.96 अपॉन 30 आया। ठीक है, अब इसको आराम से कर 296 अपॉन 30, इसका डेसिमल उड़ाने के लिए 0 कर दिए फिर। ठीक है, अब इसको लेकर क्या करोगे, 296 इंटू 3 इंटू 1000। अभी 3 को डिवाइड कर दो 3 से, देखो 296 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3000 ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, तो ये है 3 9 आर 27, 23 8 आर 24, 2 3 6 आर 18, 3 6 आर 18 ऐसा आ गया। ठीक है, अब हमको 1000 से करना है। तो अब कितने हैं, 3 जीरो से, यहाँ हमारा डेसिमल है 3 जीरो जाएगा, 09866, ये हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। इसको इतना नहीं करके फिर क्या करें, 0.0987 कर देंगे। ठीक है, या 0.99 भी कर देंगे, 0.099 भी कर देंगे। ठीक है, दैट इज ppm, दैट मीन्स द concentration of sulfur dioxide, mean concentration, the mean concentration of, इसको mean concentration of sulfur dioxide is 0.099। ये द मीन नहीं करके ऐसा करेंगे, the mean concentration of sulfur dioxide is air in the air। समझ में आ गया, हो गया। चलो अब चलेंगे ये सम पे। सो यहाँ क्या करेंगे, द अननोन एंट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ गैप्स दे दिया, इसको तुमको फिलअप करना है। ठीक है, m क्या है, n क्या है, ये करके फिलअप करना है। अब देखो हमारा क्या है, जब ये है हाइट इन, ये है फ्रीक्वेंसी दे दिया, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट कॉलम में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 ही आएगा, है ना। फर्स्ट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 12 ही आएगा, तो 12 आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर 20, ये 12, ये m से मतलब 12 से क्या ऐड करने से 25 होगा, 25 से 12 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 13। देखो 3 + 2 = 5, 1 1 2 13 आ गया। तो हमारा m इक्वल्स टू 12 आया, n इक्वल्स टू 13 आया। तो ठीक है, अभी ये हो गया। 25 से 10 ऐड करने से क्या होगा, ये हमारा 25 से 10 ऐड करने से ये क्या होगा, 30। 25 से 10 ऐड करने से 35 आएगा। ठीक है, ये हमारा 35 हो गया। ठीक है, सो 35 क्या है हमारा, O इक्वल्स टू 35 आ गया। ठीक है, अब 35 से क्या ऐड करने से 43, मतलब इसको माइनस कर देंगे, 43 माइनस 35 दैट इज 8, यहाँ 8, तो 35 + 8, 8 5 13 3 1 43 आ गया, 43। तो आवर P इज व्हाट, 8। व्हाट इज आवर Q, 43 + व्हाट, 48 5। तो 45 48 से क्या 2 ऐड करने से क्या आएगा, ये 50 आएगा। फिर आवर P इज Q इज 5, QR इज 50। समझ गए, कभी कभी ऐसा डैश फिलअप करने के लिए कह देते हैं। बहुत इजी सम है, लेकिन कभी कभी दे देते हैं, इसलिए
इसको भी आपको मालूम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच बाय वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।